Good morning, students. Today, my motive to take the class here is to teach the students to adopt to a certain subject like mathematics, to understand the subjects like mathematics. ये मैथ्स का क्लास हम इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चे उसको जो है अच्छे से समझ लें, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको जो है देख लें और देखने के बाद जो है उसको सीखें। सीखने के बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। तो मेरा मोटिव ये है कि बच्चे जो हैं अच्छी तरह से उस चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टीच सेट हेयर, तो सेट चैप्टर से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो मुझसे जो है कॉल करके या डिस्क्रिप्शन मेथड में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर सिस्टम. The theme which we have set is the number system, and in this theme there are lot of chapters. First chapter is sets, then integers, then आपका fractions है, decimal है, इस तरह से बहुत सारी categories these are included in this theme. The first theme which we are studying today is set. Now what is a set? Set is a collection of well defined objects. Suppose कीजिए a set is represented by A, then you have to make the equal to sign and then you have to write curly brackets. Now suppose the first example which we are taking is the set of natural numbers less than 9. The set of natural numbers less than 9 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now it is a well defined set because it is containing 8 elements. Now what are these 8 elements? 8 elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it is a set. Now what are the things which are not included in the set? The things which are not well defined. Suppose you say 3 days in a week. So 3 days in a week means you can take any day: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So these days are not well defined. But if you take first 3 days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, it is also not well defined. Now again I am taking another example. Suppose you are taking months of the year. So month of the year is also not well defined set. This may include January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So it is also not well defined. Now what is well defined? Well defined object is like that. It is containing 8 elements and these are natural numbers which are less than 9. Now I am taking another example which is well defined. Suppose I am taking a set B in which I am taking all the students of class, all the students of a class who are greater than, suppose 30 kg. Now it is a well defined set because you have to categorize only those students, you have to include only those students whose weight is more than 30 kg. Now the students whose weight is not more than 30 kg which will not be included in a set. तो जिन बच्चों का वज़न 30 से कम होगा वो सेट में नहीं आएंगे और जिन बच्चों का वज़न 30 से ऊपर होगा वो सेट में आ जाएंगे। तो ये बी जो है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए बी जो है ये सेट है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, methods to represent set. Methods to represent sets. So there are 3 methods by which you can represent a set. These methods include, first is description method, second is tabular method और roster method. And third is, you can say, rule method.
or set builder notation. These are the three methods by which you can represent a set. First is description method, second is tabular method or roster method, and third is rule method or set builder notation. Now first topic is how to represent a set by description method. Suppose I am taking example which I have taken previously, a set of elements less than 9, 1 2 3 4 5 6 7 8. This is a set which you have to write in description method. So in description method you have to use English language to describe a certain set. Now how will you write a certain set in description method? So in description method you have to write a set of natural numbers less than 9. This is called a set of natural numbers less than 9. This is the description method of a set. Now I am taking second point, tabular method. How to write a set in tabular method or roster method. तो second type है tabular method. Tabular method में set को कैसे लिखेंगे? A set of natural number less than 9. So in tabular method you can write a set as 1 2 3 4 5 6 7 8. ये tabular method है जिसमें जो है आप इस तरह से set को लिख सकते हैं. Now I am taking another example, set of integers greater than 3 and less than 9. सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 9. तो ये जो है आपका डिस्क्रिप्शन मेथड है. पहले हमने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन मेथड में यू हैव टू राइट द सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज लिख दिया तो ये डिस्क्रिप्शन मेथड है. अब इसी सेट को यू हैव टू राइट इन टेबुलर मेथड या रोस्टेड मेथड में लिखना है. तो इसको आप कोई भी नाम दे देंगे. बी रिप्रेजेंट कोई भी अल्फ़ाबेट से सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABCDE. अब इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 की मीन्स 4 5 6 7 8 लेस देन 9. तो यू हैव टू राइट अप टू 8. तो ये इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 3 से बड़े इंटीजर्स, एंड लेस देन 9 से छोटे. तो 4 5 6 7 8 ये जो है आपका जो है क्या हो गया, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड. नाउ द थर्ड मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट इज रूल मेथड और सेट बिल्डर नोटेशन. थर्ड मेथड है टू रिप्रेजेंट अ सेट. रूल मेथड और you can say set builder notation. I am taking the same example which I have taken earlier. Set of natural number less than 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. In rule method or set builder notation, you have to take a variable, say x, y, z, any variable आपको लेना है, and you have to write this way: a, this is the name of the set A. Now curly bracket, take any variable, say x ले लिया. You have to sign कोलन इस्तेमाल करना है. ये कोलन साइन यूज़ कर सकते हैं या भी स्ट्रेट बार भी यूज़ कर सकते हैं. x, ये स्ट्रेट बार और ये जो कोलन साइन है ये रिप्रेजेंट करता है सच डैट. क्या रिप्रेजेंट करता है ये? सच डैट. तो ये इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं. तो आप लिख सकते हैं A
x सच दैट x, ये कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिलोंग्स, ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू, ये रिप्रेजेंट करता है सच दैट x सच दैट x बिलोंग टू, ये क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के लिए आप n लिख सकते हैं, ये नेचुरल नंबर डिनोट करेगा। x such that x belongs to natural numbers. Now you have to give the value up to which natural number. तो x लेस देन कहाँ से है? 9 से कम है, तो लेस देन 9. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन रूल मेथड और सेट बिल्डर नोटेशन. तो ये 3 मेथड हमने आपको बताए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. एक तो टेबुलर फॉर्म था या रूस्टर फॉर्म था, दूसरा डिस्क्रिप्शन फॉर्म था, और तीसरा जो है ये आपका रूल मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन है. तो इसको पढ़ेंगे कैसे? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 9. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. सपोज देयर इज अनदर सेट, आई एम टेकिंग ग्रुप ऑफ इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Now these are the numbers which are included in the integers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. You have to write the following set in the rule method. Rule method में आप कैसे लिखेंगे? तो वैसे लिखेंगे b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x. अब आपको सच दैट का साइन लगाना है, सच दैट. अब x क्या है? वहाँ पे नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ पे क्या है? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स के लिए आप i भी लिख सकते हैं और z भी लिख सकते हैं. x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अब ये इंटीजर्स कहाँ तक हैं वो वैल्यू आपको लिखनी है. तो जो इंटीजर्स है -3 से कम है और 3 से, तो क्या लिखना होगा? -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3. -3 x की जो वैल्यू है -3 से कम है, -3 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 3. तो ये जो मेथड है ये आपका रूल मेथड या डिस्क्रिप्शन मेथड है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज़ कॉल्ड टाइप ऑफ सेट्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ सेट्स विच मे इंक्लूड इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के मतलब जैसे नाम से जाहिर है इसका कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है. अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. तो इसमें जो है एम्प्टी सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ये भी एम्प्टी सेट का साइन है, और ये फाई लगा इसको कट कर देंगे, फाई का साइन है, इसको बोलते हैं फाई. तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एम्प्टी ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं और फाई का साइन. तो एम्प्टी सेट जैसे नाम से जाहिर है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट. दूसरा है सिंगलेटन सेट. सिंगलेटन के सेट के मतलब ये भी नाम से जाहिर है, सिंगल यानी ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, उसको बोलते हैं अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट. अब एक एलिमेंट में जैसे a इक्वल टू ये स्मॉल a, ये जो है एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलेटन सेट हो गया. जैसे मान ली कोई दूसरा सेट है, इसमें एक ही अल्फ़ाबेट है 1, तो ये सिंगलेटन सेट हो गया. अब आपने a इज इक्वल टू 1,1,1 ऐसे ही लिख दिया, तो ये तीनों एलिमेंट एक ही हैं, लेकिन ये सिंगलेटन सेट कहलाएगा और ये 1 ही माना जाएगा. ये 2 नहीं माने जाते हैं, और ये रिपीट सेट में एलिमेंट जो है रिपीट करके नहीं लिखे जाते हैं. तो ये a इज इक्वल टू 1, ये जो है वो सिंगलेटन सेट है.
finite set means limited number of elements। फाइनाइट सेट के मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो सेट 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट जो है काउंटेबल हैं, तो वो फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ z है, z के एलिमेंट हमने ले लिए a, e, i, o, u। नाउ इट इज़ अ सेट ऑफ वॉवेल। ये वॉवेल का सेट है, ये काउंटेबल है, तो इसके मतलब a, e, i, o इसके 5 एलिमेंट हैं। ये जो है ये सारे चीज़ें जो है एलिमेंट कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ अ सेट। और ये एलिमेंट ऑफ अ सेट जो है 5 एलिमेंट हैं, तो ये काउंटेबल है। क्या है ये? काउंटेबल, जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, तो ये इसका नाम हो गया फाइनाइट सेट। अब इसी का रिवर्स ले लिए, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के मतलब अ सेट whose elements can't be counted, जिसके एलिमेंट जो हैं आप काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में मान लिए इंटीजर्स आ गए सारे, तो इंटीजर्स की लिस्ट जो है बहुत लंबी होती है। इसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें ये डैश डैश छोड़ दिया, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, और ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे नंबर। ये 0 से लेकर जो राइट हैंड में जाएंगे वो सब सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, 0 से लेकर लेफ़्ट हैंड में जाएंगे वो सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो इंटीजर्स में होते ही हैं, दोनों नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी और इंटीजर। तो ये जो है ये इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दी सेट। इन एलिमेंट्स के जो आप, इन सेट के जो एलिमेंट हैं आप नहीं काउंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? एक मेन सेट जिसके अंदर से सारे सेट बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। इसको आप जो है यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसी से हमने दूसरा सेट बना लिया, A = इसमें 2 एलिमेंट लिख लिए 1, 2। तो ये जो है A जो है A का जो यूनिवर्सल सेट ये हो गया। इसी में हमने दूसरा सेट बना लिया B में हमने 3 एलिमेंट लिख लिए 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 एलिमेंट, इसके एलिमेंट जो है सेट B के यूनिवर्सल सेट में इंक्लूडेड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो दिस विल बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो इससे सारे जो एलिमेंट हमें सेट बनाएंगे वो सारे इसके जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अ सेट हुज एलिमेंट्स आर सेम एंड इक्वल इन नंबर, जिसके एलिमेंट सेम हो और इक्वल इन नंबर हो उसको बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, और B हो गया 3, 2, 1। तो एलिमेंट्स इन दोनों सेट में एक ही हैं। इसमें एलिमेंट 1 है, इन सेट भी देयर इज आल्सो एलिमेंट 1। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये जो है क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द सेम एलिमेंट। जब सेम एलिमेंट होंगे तो उसको जो है इक्वल सेट बोलेंगे। इसी की तरह दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट के नंबर सेम, जैसे यहाँ 3 एलिमेंट थे, यहाँ भी 3 एलिमेंट थे, बट दे वर सेम एलिमेंट, लेकिन दोनों सेम एलिमेंट थे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। यहाँ पे 1, 2, 3 एक सेट है A, इसके 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3। एक सेट है B, इसके 3 एलिमेंट हैं A, B, C। नाउ व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट इज़ दैट in equal set there are same element, and in equal set the number of elements are same but the elements are different. In this set A there are there are numbers 1, 2, 3 digits, और इसमें सेट B में there are alphabet A, B, C।
लेकिन दोनों की जो नंबर हैं वो 3 इसमें भी डिजिट्स हैं और 3 इसमें भी हैं, तो ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन बट दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज इक्वल नहीं है क्योंकि उसमें इक्वल सेम एलिमेंट नहीं है। फिर है नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। इन ओवरलैपिंग सेट देयर मस्ट बी वन एलिमेंट इन कॉमन। सपोज ए सेट हमने ले लिया ए बी सी, दूसरा सेट लिया हमने डी ई ए। ये ओवरलैपिंग सेट में एक एलिमेंट है, एक सेट है ए, उसके 3 एलिमेंट है ए बी सी, दूसरा सेट है बी, इसके भी 3 एलिमेंट है डी ई ए। बट दीज टू सेट्स हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज कॉमन। नाउ व्हाट इज दैट एलिमेंट? वो एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट है ए। तो अगर कोई ऐसा सेट होगा जिसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 3 इसमें भी हैं 3 इसमें भी, लेकिन उसमें से एक एलिमेंट जो है कॉमन होगा, जो इसमें भी हो, जो उसमें, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। क्या बोलते हैं उसको? ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ओवरलैपिंग में एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन था, डिसजॉइंट में जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जैसे सेट Z है, Z में हमने एलिमेंट लिखे 7 8 6 4, और यहाँ पे हमने ले लिया X के हमने सेट ले लिए A B C D। तो 4 एलिमेंट इसमें भी हैं सेट Z में, और 4 ही एलिमेंट सेट X में है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, बट दे डोंट हैव एनी एलिमेंट कॉमन। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं था। जैसे हमने ओवरलैपिंग सेट देखा था, ओवरलैपिंग सेट में जो है एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन था। डिसजॉइंट सेट में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट हैं, दोनों में 4 एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों में जो है कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे डिजिट्स हैं, यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट है, बट दे डोंट हैव एनी एलिमेंट कॉमन। तो ऐसे को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। नाउ व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? कार्डिनल नंबर, cardinal number means the number of element present in a set, means the exact number of elements present in a certain set। एक सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे हमने सेट ले लिया y में ले लिया A B C D E, तो हमने पूछा व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट y। सेट y का कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n ब्रैकेट y। ये जो है n डिफाइन करेगा हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सेट y। तो सेट y में कितने मेंबर यानी कितने एलिमेंट है? तो 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए n लिखेंगे ब्रैकेट, सेट का नाम लिखेंगे y, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नाउ यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज़ 5। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो गया। व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट y? तो सेट y का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? n ब्रैकेट y इज इक्वल टू 5। सपोज कीजिए सेट A है, इसके 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया? n ब्रैकेट A इज इक्वल टू 3। क्योंकि 3 एलिमेंट हैं, इसका कार्डिनल नंबर जो है वो 3 हो गया।
क्या क्या स्टडी किया? पहले हमने आपको सेट स्टडी किया। व्हाट इज़ अ सेट? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फिर हमने ये स्टडी किया था, व्हाट इज़ अ सेट? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा स्टडी किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो 3 मेथड बताए थे हमने, डिस्क्रिप्शन मेथड, दूसरा मेथड क्या बताया था? टेबुलर फॉर्म, तीसरा मेथड बताया था रूल मेथड। ये 3 मेथड हमने बताए थे। फिर उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सेट दिया था, उसके लिए जो है उसमें सिंगलटन था, सिंगलेटन सेट। फिर एम्प्टी सेट था, एम्प्टी सेट या नल सेट जिसको बोलते हैं। फिर फाइनाइट सेट था, इनफाइनाइट सेट था, ओवरलैपिंग सेट था, डिसजॉइंट सेट था। ये सारी चीज़ें, सारी टॉपिक्स थी। फिर इक्वल सेट था, इक्विवेलेंट सेट था, और सबसे लास्ट में जो था वो आपका जो है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट था। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू लेटर। थैंक यू।